Good morning to everyone. So in the previous lecture, we have started with introduction to accounts, जिसमें हमने company accounts, introduction to company accounts, where we learnt about company. So what you have in this chapter is important because here we will see the form, how does in the Companies Act 2013, how the balance sheet is prepared. That we will understand in this chapter, because in profit prior to incorporation we had a balance sheet to prepare. So यही format से prepare करते. Redemption of preference shares chapter में also balance sheet sums are there. There also we prepare the balance sheet in the same manner. So let us understand the format of balance sheet. So in today's lecture, what I will do is, I will only explain you this format. In the coming lecture, we will do one sum based on this format. Then we can move to our next chapter, because this chapter which you have is theory chapter. ये चैप्टर में आपको theories है, you don't have any practical aspect. So यहाँ पे how is the format of the balance sheet? Part 1, which is form of balance sheet, name of the company and balance sheet as on. As on मतलब क्या? Balance sheet का जो life है वो एक दिन का होता है. इसके लिए as on that particular date, whatever is 31st March, 31st December, whatever is the date that we have to write. And then see यहाँ पे particulars note number. What is that note number? Notes to account करके ये बैलेंस शीट में हम सिर्फ टोटल लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी कुछ होता है, the description, whatever is included in the particular item is shown in the notes to account. So this note number is what? That is the notes to account का क्या number है वैसे. And next you have figures as at the end of the current reporting period, that is for the current year, and figures as at the end of the previous reporting period, that of the previous year. So that एक ही बैलेंस शीट में आप दोनों ईयर्स में कंपैरिजन कर सकते हो कि पिछले ईयर में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर कैपिटल, नाउ व्हाट इट इज, डेटर्स पिछले प्रीवियस ईयर में कितना था, अभी कितना है. अगर बाजू में ही आपको दोनों पीरियड के अमाउंट्स है, देन इट बिकम्स इजी टू मेक अ कंपैरिजन. बट व्हेन वी आर डूइंग सम्स, आपको सिर्फ करंट पीरियड का ही अमाउंट दिया रहेगा. बट इन एक्चुअल इफ यू हैव अ लुक ऑफ द कंपनीज balance sheet of a particular company, so you will find the figures of both the years, previous year also and current year also. But here when we are doing sums, they will give us the information only for 1 year, that is of the current year. बट आप एक्चुअल कंपनी का कोई बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें आपको दोनों पीरियड के अमाउंट्स दिखेंगे, प्रीवियस ईयर के भी और करंट ईयर के भी. Now, as I have also told you earlier, हम हमारे बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज नोन एज लाइबिलिटीज और दूसरा असेट. लाइबिलिटी को हम बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स. इक्विटी मतलब क्या? शेयर होल्डर्स फंड. एंड शेयर होल्डर्स फंड में शेयर होल्डर के फंड में दो चीजें होती है. एक होता है मेन शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल are of two types, equity share capital and preference share capital. Then we have reserves and surplus. Reserves मतलब all the savings of the company. Surplus मतलब profit and loss account. Surplus मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लास्ट ईयर का बैलेंस दिखाते, एड करंट ईयर प्रॉफिट लॉस और माइनस एप्रोप्रिएशंस. नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशंस? एप्रोप्रिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट टू द ओनर्स. डिविडेंड देना, interim dividend, transfer to any reserve is deducted from the appropriation. देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा, फर्स्ट ईयर में किया रहेगा. जब पार्टनरशिप अकाउंट्स होता है तो एप्रोप्रिएशन मींस पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन. एंड अगर किया है ना, when there is one single owner, is there any need for appropriation?
एप्रोप्रिएशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब सोल ट्रेडर है तो सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा, तो जरूरत ही नहीं है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। बट व्हेन देयर इज मोर देन वन ओनर, दैट इज पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, तब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आपने जब 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया था तब कभी भी एप्रोप्रिएशन वाज नॉट देयर, बिकॉज ऑल द प्रॉफिट विल बी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकंड थॉट, विल बी गिवन टू द ओनर who is a single owner. But when you came to your 12th standard, you saw this appropriation account, means distribution of profit to the owners. When there are more than one owner, we have appropriation of companies में there are shareholders who are more than one, तो प्रॉफिट उनको डिवाइड होना चाहिए। तो किस में डिवाइड होता है? एप्रोप्रिएशंस में। और उनको क्या मिलेगा? उनका डिविडेंड होगा, इंट्रीम डिविडेंड कुछ दिया है। What is interim dividend? On the spot dividend declare होके पे होता है in between two annual general meeting. If there is a payment of dividend, it is known as interim dividend. And transfer to reserve. Reserve मतलब क्या? सेविंग ऑफ द कंपनी। वो सेविंग किसको बिलोंग करते हैं? ओनर्स को। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। तो वो भी हम वहीं पे एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। So this is done. Then this money received against share warrant, share warrants में कन्वर्ट किया आपके शेयर क्या, आपके शेयर्स को। तो ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दिस ऑल। आप हमारा जो फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्मेट, इसमें इट इज अ वेरी यू से फॉर्मेट विच इज हैविंग एवरीथिंग, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, एवरीथिंग इज देयर। बट जो हमारा सम्स होगा वो इतना, इट विल नॉट बी सो मच इन डिटेल। सो ये सब चीज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये सब नहीं रहेगा, बट यहाँ पे इट इज देयर। बट व्हेन वी विल बी डूइंग सम्स तो ये सब नहीं रहेगा। एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, when the company is have done a application of shares and allotment is pending, तो ऐसा कुछ भी फॉर्मेट में है, बट हमारा सम्स में आप ये सब नहीं देखोगे। सो फॉर नॉर्मली हमारे सम्स में क्या होता है? इक्विटी होता है। इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड आर देयर। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इतना ही है। उसके बाद हम डायरेक्टली जाते हैं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। द नेम इटसेल्फ सेज non-current liabilities are liabilities which are there for a longer period of time, and current liabilities are liabilities for shorter period of time. So non-current liabilities में आता है long-term borrowings. Long-term borrowings are borrowings which are taken by the business for a longer period of time, like the debentures, like any bank loan which is for a longer period of time, any loan taken for a period longer। हम अब longer मतलब कितना longer? more than a year हम ऐसा assume करते, तो उसको हम कोई भी borrowings हमने 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लिया तो उसको हम long term borrowings में डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ये भी नॉर्मली होता नहीं है, तो ये दो टाइप का होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड डेफर्ड टैक्स असेट्स। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट देयर इन द क्वेश्चन, बट ये क्या है डेफर्ड? डेफर्ड मतलब हम इसको क्या करते हैं? ड्यू है। डेफर्ड मतलब ये दिस वन इज ड्यू। नॉर्मली क्या होता है? दीज आर द टैक्सेस which have not been paid yet. तो ये है ना पेंडिंग है। तो when there is any change in any, नॉर्मली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एज पर इनकम टैक्स there will be some other rule, as per financial account there will be some other rule। तो उसके हिसाब से टैक्स में भी there is some टैक्स पेमेंट जो हम करते हैं उसमें वेरिएशन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये दो कंसेप्ट आते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का जो हमें पे करना है फ्यूचर में, और डेफर्ड टैक्स असेट मतलब दैट टैक्स हैज बीन सेव्ड, हमें नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसे दो कंसेप्ट होता है इन सिंपल टर्म्स। तो अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आएगा डेफर्ड टैक्स असेट है
तो असेट में आएगा। ऐसे करके दो कंसेप्ट है, बट हमारे नॉर्मल सम्स में दिस बोथ कंसेप्ट नहीं आते। तो सिर्फ डेफर्ड टैक्स है तो असेट में आएगा कि लाइबिलिटी में आएगा, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि ट्रायल बैलेंस का अमाउंट किधर शो कर रहा है। अगर वो डेबिट में है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में असेट होता है, तो हम असेट में लिख लेंगे। अगर क्रेडिट साइड में है तो लाइबिलिटी में लिख लेंगे। तो ऐसा करके ये टू कंसेप्ट्स है। Then we have other long-term liabilities, any liabilities which are for long-term nature, so it will come here. And long-term provisions, provisions for PF, वो long-term nature के लिए रहता है ना, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। जनरली आपको हम जब सम्स करते तो ज्यादातर सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। Then we have current liabilities. Current liabilities में we have short term borrowing. Short term borrowings means borrowing taken from a director for shorter period of time. और इसमें एक important चीज आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। Short term borrowing में क्या आता है? Bank overdraft is a borrowing that we have taken from the bank. Bank ने, you know what is a bank overdraft? Means negative bank balance. आपके पास बैंक में अमाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, फिर भी बैंक ने आपके चेक को पास किया, तो एक आप अब नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होता है, लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होता है, मतलब आपको बैंक को इतना पैसा पे करना है, सो दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, बिकॉज ये ज्यादा पीरियड के लिए नहीं रहेगा। उस करंट अकाउंट में रोज ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कब ये बैलेंस नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव में चेंज हो गया। करेक्ट? So this is for a shorter period of time. This borrowing taken from the bank is for a shorter period of time. तो short term borrowing में ज्यादातर क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, या तो any borrowing which is taken by the company for a shorter period of time will come in the long term borrowings. Then trade payables में दो चीज आता है, that is creditors and bills payable. Trade payable में क्या आता है? Creditors and bills payable. Then other current liabilities में any outstanding expenses are there, तो कहाँ पे आएगा? Other current liability में. And last we have short term provision. इसमें क्या आता है? इसमें पहले तो दो चीजें आती थी, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है तो कोई भी टाइप ऑफ प्रोविजन which is for a shorter period of time will come here. पहले हम proposed dividend भी इधर लिखते थे, but अभी proposed dividend is not shown in the balance sheet, but it is shown as an additional note. उसी में हम दिखाते हैं, because अभी कुछ changes हो गया है, previous years में कुछ changes हो गया है in the format, and they say that proposed dividend को यहाँ पे मत बताओ, उसको नोट में बताओ, तो हम नोट में दिखाते हैं। एडिशनल नोट में वी शो अबाउट द प्रपोज डिविडेंड। ये तो दो टाइप का प्रोविजन हम बोलते थे पहले, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड भी अभी पे करेंगे, तुमको पता है एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, बट पे होता है मिनिमम 6 महीने बाद, तो तब तक तो वो लाइबिलिटी है, तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में उसको दिखाते थे, बट नाउ देयर हैज बिकम अ चेंज दैट उसको हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, बट एडिशनल नोट में दिखाना है। देन हमारा लाइबिलिटी में इतना ही है। नाउ वी कम टू द असेट, एंड असेट में व्हाट वी हैव, हमारे असेट में हम पहले बोलते हैं नॉन करंट असेट। असेट में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट, नेम से ही पता चलता है, assets which are for a longer period of time. इसमें हमने बोला फिक्स असेट। सो फिक्स असेट में अभी हम लोग इसको फिक्स असेट में दो कितना टाइप दिया है इधर? 4 टाइप्स दिया है। सबसे पहले टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स मतलब क्या? assets which can be seen, touch and felt, like land and building, plant and machinery, furniture, computer, vehicle, all are tangible, etc. All are tangible assets. Then what is intangible assets? Which cannot be seen, touched, but can only be felt, like the reputation of the company,
लाइक कॉपीराइट्स, व्हाट इज कॉपीराइट्स? आपका कोई पब्लिशिंग राइट है जिसका ऑथर का आपने इन्वेंशन के जैसा है, बट इट इज रिलेटेड टू लिटरेरी एंड आर्ट्स, तो उसमें कॉपीराइट्स होता है। जैसे आपने कोई पोयम लिखा, आपने कोई बुक पब्लिश किया, उसका राइट, उसको पब्लिश करने का राइट आपके पास है, वो कॉपी पब्लिश का राइट पब्लिशर्स के पास है, लेकिन ऑथरशिप राइट आपके पास है। तो वो जो है वो कॉपीराइट्स होता है, वो भी इंटेंजिबल होता है, उसे भी हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। दूसरा इन्वेंशन राइट्स, आपने आपके कंपनी के फैक्ट्री में कुछ इन्वेंशन किया, तो इन्वेंशन का राइट आपके पास है, तो उसको पेटेंट्स, उसका पेटेंट्स हम रजिस्टर्ड करते हैं, राइट। जैसे बासमती राइस आपने इकोनॉमिक्स में किया रहेगा, टर्मरिक, ये सब चीजें का कंट्रोवर्शियल इश्यूज था जिसके ऊपर हमें हमारे कंट्री को फाइट भी करना पड़ा था विद द फॉरेन कंट्रीज। सो ये सब है क्योंकि हमें पहले से नहीं पता था दैट अगर हमारा कुछ चीज है तो वो हमें रजिस्टर करना पड़ता है। वी वर नॉट अवेयर बिकॉज हमारे यहाँ पे तो सब चीज है, लेकिन हाँ, सब चीज बहुत एंशन से हमारे पास है, पर हमने क्या गलती की, हमने उसे रजिस्टर नहीं किया कि ये चीज के हम ओनर है। तो दैट पेटेंट राइट ऑल्सो, लाइक कंपनीज में वो लोग कुछ भी इन्वेंट करते तो तुरंत उनको कोई और इन्वेंट कर, वही चीज निकालने से पहले हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है कि इसका राइट हमारे पास, हमने ये इन्वेंट किया। अब तुम्हें हम यूज करने देंगे, लेकिन तुम्हें हमें क्या देना होगा, रॉयल्टी देना होगा। So if anyone else wants to use our invention, they have to pay us रॉयल्टी। तो वो पेटेंट, उसको भी कोई, इट इज ऑल्सो इंटेंजिबल, आपने रजिस्टर्ड किया बट वो दिखता नहीं है ना, क्या आपने इन्वेंशन किया उसका क्या है, बस आपने रजिस्टर किया तो आपको वो राइट मिल गया। लाइक गुडविल राइट, द रेप्यूटेशन पेटेंट इज ऑल्सो, आपने कुछ लिखा है तो आपको उसका कॉपीराइट्स मिला, कोई और अगर उसको यूज करेगा तो आपका परमिशन लेना होगा। लाइक गानों का सब होता है, देखो फिर वो लोग केस करते कि इसका कॉपीराइट्स मेरे पास है, आपने यहाँ पे यूज किया, आपको मुझे पेनल्टी देना पड़ेगा। ये सब क्या है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। लाइक डिजाइन्स के ऊपर भी होता है, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। आपने सेम अभी एक बिस्लरी बॉटल ऐसा हो गया, तो अगर कोई और उसको वो सेम डिजाइन यूज करता है तो फिर उनको पहले तो सामने वाले से, उनको जैसे कुछ भी डिजाइन या ट्रेडमार्क रहता है तो पहले उसे रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि कोई और उसे यूज ना करे, तो आपको उसका राइट मिल जाएगा। सो ऑल दिस आर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। आपको लॉ, बिजनेस लॉ में भी आपको वो सब चीज सिखाएंगे। IPR इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें आप पेटेंट्स, कॉपीराइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, ट्रेडमार्क्स। यहाँ पे जस्ट इंटेंजिबल एसेट्स में ये सब आ जाता है। फिर हमारे पास है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? सपोज देयर इज वन बिल्डिंग व्हिच इज अंडर कंस्ट्रक्शन बट रेडी नहीं है, सो tangible assets, not intangible, tangible assets which are in progress of construction are known as capital work in progress। फिर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, मतलब इंटेंजिबल एसेट कोई इन्वेंशन है, वो हमारा जो रिसर्च, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग उसका इन्वेंशन के प्रोसेस में है, बट अभी तक इन्वेंशन हुआ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देखो ये फॉर्मेट में हर एक चीज है, बट नॉर्मली सिर्फ टैंजिबल इंटेंजिबल होता है क्वेश्चन में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आपको सम्स में नहीं मिलेगा, बट समझने के लिए इट इज देयर। Then non-current investments means investments which are there for a longer period of time। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जो कि आपके पास, आप उसको जल्दी सेल नहीं करोगे। देन डेफर्ड टैक्स असेट्स, जैसे मैंने बोला था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है, वैसे ही देयर इज डेफर्ड टैक्स असेट्स। देन वी हैव लॉन्ग टर्म loans and advances, then we have loans and advances। आप long term security deposits है तो then it will come here long term loans and advances। then we have other non current asset, ये हमारा fictitious asset है। क्या है?
We have done in management accounting fictitious asset which are actually not assets but हम उसको asset मान के चलते, जैसे preliminary expense जिसको company formation expense बोलते, underwriters commission, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सब है ना। वैसे तो एक्सपेंस है लेकिन हम असेट साइड में इसको लिखते हैं, तो इसको हम अगर फिक्टिशियस असेट को हम किधर दिखाएंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में, बट इसको अदर करंट असेट्स में भी दिखा सकते हैं। अगर हमने अदर नॉन करंट असेट में दिखाया तो हम इनको मानते कि लॉन्ग टर्म नेचर का, और अगर हमने अदर करंट असेट में दिखाया तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म नेचर का। वी कैन शो इट एट any of the one place, both are correct. अदर नॉन करंट एसेट में दिखाया तो भी करेक्ट है, अदर करंट एसेट में दिखाया तो भी करेक्ट है, बिकॉज वी आर देन अज्यूमिंग इट टू ऑफ बीइंग ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। देन वी हैव करंट एसेट, करंट एसेट में आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स विच आर देयर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, इन्वेंट्रीज मीन्स व्हाट, स्टॉक। Trade receivable means debtors and bill receivable. Cash and cash equivalent मतलब cash at hand, cash at bank. फिर short term loans and advances, prepaid expense, tender deposit, जो भी हमारे पास deposits है for a shorter period of time. Loans given to employees for shorter period of time, तो ये सब इधर आ जाएगा। हमने employees को लोन दिया, फ्यूचर में हमें वो पैसा वापस मिलेगा। लोन नॉट टेकन, लोन्स गिवन, सो लोन्स आर गिवन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, सो वी कॉल इट एज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देन लास्टली वी हैव अदर करंट असेट्स। सो अदर करंट असेट्स में क्या आएगा, एनी हमारे पास कोई भी बाकी जो असेट्स बच गया जो कि हम किधर भी नहीं लिखते हैं वो इधर लिखेंगे। एंड इसके अलावा इफ देयर इज एनी फिक्टिशियस असेट्स एंड वी अज्यूम इट टू बी ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, देन वी विल राइट इट हियर अंडर अदर करंट असेट्स। तो इसके साथ हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया असेट्स का। लास्ट में हम देखते हैं कि टोटल ऑफ द बैलेंस शीट में टोटल ऑफ द लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द असेट्स। एंड इसके साथ एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। हैव यू हर्ड अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज which are not fixed, which are not certain. It may occur और may not occur. तो इसको हम बैलेंस शीट में किधर भी नहीं दिखाते, इसको हम एडिशनल नोट करके नीचे दिखाते। ये चैप्टर तुम लोग और अच्छे से करोगे when you will all be in your TY BCom, because कंपनी अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स यू हैव इन योर 5th सेम, जहाँ पे ये चैप्टर हम और डिटेल में करेंगे, जिसमें हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करेंगे, बट व्हेन यू विल बी इन योर TY BCom, तो वहां पे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे ऑल दिस। सम्स भी ज्यादा रहेंगे करने के लिए। एंड व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब बताओ डिविडेंड पे करना कंपलसरी है क्या? डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, बट डिबेंचर्स के ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। डिविडेंड कंपनी बोलती है पे करेगी, फिर बाद में बैकआउट भी करती है ना, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंपलसरी। सो दैट कंपनी पे कर भी सकता है डिविडेंड, नहीं भी पे कर सकता है। तो इसलिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। एंड देन सपोज देयर इज वी हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विटी शेयर्स, एंड वो इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, बट अब तक कंपनी ने सिर्फ 5 रुपीज कॉल्ड आउट किया है। ओके, बाकी 5 रुपीज कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी मंगा सकती है। तो हमारे पास ऐसे पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये साल हम वो रिमेनिंग 5 रुपीज, अगर वो कंपनी जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है दैट कंपनी अगर हमें बोलती है पे दैट रिमेनिंग मनी, देन वी विल पे। अगर नहीं मंगाती है तो वी विल नॉट पे। मीन्स इट्स अ लायबिलिटी विच मे अराइज और मे नॉट अराइज। जैसे यू आर एक्टिंग एज अ गारंटर,
your company is acting as a guarantor to someone who has taken loan. तो आप बैंक को आपने बोला that give this person that loan and I am acting as a guarantor. तो अगर वो person default करता है तो बैंक किसके पास आके बोलेगा मुझे मेरा पैसा चाहिए? Because you have acted as the guarantor. So this is also a contingent liability. If the opposite person जिसको लोन मिला है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट, देन बैंक विल कम टू यू. आपने गारंटी दिया था. तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी व्हिच मे अराइज और मे नॉट अराइज. श्योरिटी नहीं है. या तो उसका एक और इंपॉर्टेंट केस है, एक एग्जांपल है कोर्ट केस पेंडिंग. आपका एक केस है, इशू है, देयर इज अ डिस्प्यूट of the company, जिसका that case is going on. और आपको केस पता है, कोर्ट केस जल्दी फैसला होता है कि ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है. सो यू आर नॉट श्योर दैट वो जो केस आपका चल रहा है उसका डिसीजन आपके अगेंस्ट होगा या आपके फेवर में होगा. बट ये केस जब तक चलता है, अचानक से हो गया आपके अगेंस्ट में, तो यू विल हैव टू पे द मनी. और कोर्ट केस तो चलता ही रहता है. वो एक बहुत है ना, दैट केस वी डोंट नो टिल व्हेन दिस केस का हमें सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ऐसे लायबिलिटी को भी हम क्या बोलते हैं, इफ एनी केस इज पेंडिंग इन द योर एनी केस इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, देन दैट इज आल्सो कम्स अंडर contingent liability. You may, that case may be settled, may not be settled. सेटल होगा तो भी आपके फेवर में होगा, नहीं होगा, वी कैन नॉट से. सो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी. सो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द बैलेंस शीट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अ सम ऑन बैलेंस शीट, ताकि ये फॉर्मेट को हम का सम्स भी करें और आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए. ये लेकिन आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज नॉट देयर इन द एग्जाम, बिकॉज ये आपको सिर्फ थियोरी है एग्जाम में गिवन. आप अगर आपका टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो वहां पे लिखा है ओनली थियोरी. प्रैक्टिकल पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस फॉर सेमेस्टर 4. सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.